Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ وہ صفات جس کے جو ہے وہ اپوزٹس نہیں ہوتے ہیں اس کا ہم جو ہے وہ سیکنڈ جو صفات ہے اس میں انشاءاللہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے سیکنڈ صفت جس کے اپوزٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہے قلقلہ۔ اور انشاءاللہ یہ کیا ہے، اس میں کون سے حروف ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی کیا ایگزامپلس ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے۔ اب دیکھیے کہ قلقلہ کے معنی کیا ہے۔ تو قلقلہ کے معنی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ قلقلہ کو ڈکشنری میں دیکھو گے تو اس کا معنی آپ کو ملے گا کہ لرز اٹھنا یا پھر خلل پیدا کرنا، ٹکراؤ ہونا، اس طریقے کے کچھ معنی آپ کو ملیں گے۔ تو کیسے؟ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جب قلقلہ، یہ جو صفت ہے، یہ جو ایک کوالٹی ہے، اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس وقت آواز میں، یعنی جس حروف پر یہ ہم کر رہے ہیں اس میں ایک طریقے کا ایک ٹکراؤ آتا ہے۔ کس طریقے سے؟ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو حروف کے مخرج میں خلل پیدا ہونا تاکہ ایک مضبوط تلفظ سنائی دے سکے۔ یعنی کہ جب آپ ان حروف کو ادا کرتے ہو، اسپیل کرتے ہو، تو بہت اسٹرانگنس اس کے اندر محسوس ہوتی ہے قلقلہ کے لیٹر پر۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ قلقلہ کے لیٹرز کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے کچھ حروف ہے یہاں پر، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جی، یہ جو 5 حروف آپ دیکھ رہے ہیں، تو اگر ان حروف میں کسی پر بھی، کسی ایک پر بھی، یا ان تمام پر اگر آپ سمجھیے کہ رک رہے ہیں اور اس پر سکون اگر آپ دے رہے ہو، یا آلریڈی اس کے پر سکون ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آلریڈی قرآن میں اس پہ سکون دیا ہوا رہے گا، اور کبھی کبھی اگر ہم رک رہے ہیں، ہم سانس توڑ رہے ہیں تلاوت کے دوران، تو ہمیں رکنا پڑتا ہے، تو ہم وہاں پر سکون دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر آپ کو اس کو قلقلہ کی صفت دینی ہے۔ کس صورت میں؟ پھر سے ایک بار سنیے، ان تمام حروف پر یوں ہی نہیں کہ آپ کہیں بھی قلقلہ کر دیں، جی نہیں، شرط ہے کہ اس پر اگر ساکن ہوگا تو ہی آپ اس میں قلقلہ کی صفت دیں گے۔ دیکھیے، میں بول رہی ہوں قلقلہ، اس کو بولتے وقت بھی ایک آواز میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک خلل پیدا ہو رہا ہے۔ ان باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ عربی کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں، بولنے میں ہی اس کے معانی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بولیں۔ کتنے لوگ ہیں تجویز سیکھے ہیں، پڑھاتے ہیں، کئی سالوں سے ان کا تعلق ہے، پھر بھی وہ کل کلا کل کلا، تو دیکھیے بھائی، یہ کل کلا نہیں ہے، یہ قلقلہ ہے۔ ٹھیک ہے، قاف سے ہے، یہ کاف سے نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ بھی اس کو بولنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ تجوید میں جو ہے وہ قلقلہ، پھر آپ دیکھیں کہ کس کو کہا جاتا ہے، کسی، یعنی کہ اچھلنے یا ٹکرانے کو کہتے ہیں۔ جب قلقلہ کے حروف پر سکون ہو، یعنی ساکن ہو، قلقلہ کے حروف الفاظ کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، اینڈ لاسٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے، ایگزامپل کے ذریعے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بس ابھی فی الحال جو ہے اس لیول پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 5 حروف ایسے ہیں جس میں ہم کو قلقلہ کی صفت دے کر پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی 5 حروف ہے، بڑا مشکل ہے، ہم کیسے یاد رکھیں؟ تو کوئی بات نہیں، اس کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب لیٹرز کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا گیا ہے
जिसको कुतुब जद्दीन कहा जाता है। कुतुब, देखिए कुतुब जद्दीन, इसमें भी आपको सही प्रोनाउंस करना है। आप इसको कुतुबुज्जद्दीन तो गलत आप हो जाएंगे। आपने काफ पढ़ दिया, ता पढ़ दिया, जी नहीं। कुतुबुज्जद्दीन, कफ, फ, बा, जी, दाल। ठीक है, ये सारे लेटर्स सही तरीके से आपको प्रोनाउंस करने आने चाहिए। फिर उसके बाद अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि सुकून हो या हम सुकून लगा रहे हैं, तो ये क्या चीज है। चलिए आज एक नई चीज आपको इंशाल्लाह पता चलेगी कि सुकून की भी कुछ किस्में हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ दिस सुकून। अब आप सोचेंगे भाई ये सुकून क्या है। जी हाँ, ये सुकून वही है जिसको आप में से कुछ लोग जज्म भी कहते हैं। छोटा सा दाल हर्फ के ऊपर बना हुआ होता है, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसा एजेड अगर आते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, सुकून क्या है बाजी, ये सुकून क्या है। हाँ, नहीं समझ आता। कई टाइम के बाद उनको फिर समझ आता है कि ओह अच्छा, जज्म को ही सुकून कहा जाता है। तो देखिए, इसको सुकून, साकिन, जज्म सब कुछ कहा जाता है। आप जैसे समझ पाए आप समझ ले, कोई बात नहीं, मकसद आपको समझाना है। चलिए, तो आप देखिए कि कुरान में दो तरह के सुकून आए हैं। चलिए देखते हैं भाई, आज तक तो हमें पता था कि एक ही था, ये दो क्या है। एक है सुकून असली। ओके, असली, नाम से ही पता चल रहा है, ओरिजिनल। दैट मीन्स कि कुरान में हर्फ पे आपको नजर आएगा ही आएगा, वहां पर सुकून आपको दिखेगा ही दिखेगा। और एक होता है सुकून आरजी। ठीक है, आरजी सुकून मतलब टेम्पररी, हमने जो है उसको बस लगा दिया है। क्यों? रुकने की वजह से। जो लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के लिए हम उसमें सुकून लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उस वक्त आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। चले, अब आप कह सकते हो सुकून असली को कंपलसरी सुकून आप कह सकते हो, एंड सुकून आरजी को टेम्पररी सुकून आप कह सकते हो। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि कलकला की मिसाल जब इस हुरूफ पर सुकून हो, यानी अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं किसके, कि ये जो लेटर्स हमारे सामने हैं, काफ, तो, बा, जीम, दाल। तो अगर इन लेटर्स पे आपको सुकून नजर आता है, तो आप क्या करेंगे, इस पर जो है हमें क्या करना है, कलकला करना है। चलिए, अब आप देख रहे हो यहाँ पर अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको जो ये सर्कल दिख रहा है ना, ठीक है, हरूफ के ऊपर, काफ के ऊपर छोटा सा ऐसा सर्कल दिख रहा है। तो कंप्यूटर की जो टाइपिंग होती है अरबी की, इस तरीके का भी सुकून यानी जज्म होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। तो कोई भी शेप आए तो आप थोड़ा सा समझ जाएं। ऐसा ना कहे कि भाई हमें तो इसमें पिक्चर में सुकून नजर ही नहीं आ रहा है, आप कहाँ ढूंढे, कहीं ना ढूंढे। ये सर्कल को भी जो है वो सुकून भी कहा जाता है। तो चले इंशाल्लाह इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी भी इल्म में इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर काफ पर सुकून है, तो बा, जीम, दाल, इन सब पर जो है वो सुकून दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ कर देखते हैं किस तरीके से आपको इसमें कलकला करना है। देखिए, कलकला में आप किस तरीके से टकराव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि दो गाड़ियां आमने सामने से आके टकरा गई, ठीक है। अब वो टक्कर जो मारेंगे ना वो लोग, फिर कैसे अलग हो जाते हैं। एक बार टक्कर लगी तो भाई चिपक के नहीं रह जाती वो गाड़ी, टक्कर लगती है ऑन द स्पॉट, वो फिर ऐसे जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। बस इन चीजों को याद रखें। पहले क्या करना है हमें, यहाँ पर दो तरीके की आवाज आएगी। जब आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है बा के ऊपर कलकला कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो बा के ऊपर साकिन है, अब आप इसको कलकला कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे पहले, अब लिप्स को बंद करना है आपको, फिर उसके बाद बा, ये दूसरी आवाज थी जो टकरा के अलग हुई। वापस सुनिए, अब, फिर दूसरे जो है वो इस टाइप पर आपको ब, अब, ब, अब, ब। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप जब इसको तिलावत में अप्लाई करेंगे तो अब, अब,
अगर आप पहले ही स्टेप में लिप्स को खुला छोड़ देंगे तो कलकला की सिफत अदा नहीं होगी। ठीक है, कलकला की सिफत के लिए ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहले आप आवाज को बंद करोगे, देन उसके बाद दूसरी जो आवाज है उसको निकालोगे। ठीक है, कैसे? अब ब, अब ब। देखिए मैं इसको, अच्छा, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए अब मैं ये लिख रही हूं, अगर आपने आवाज को, मुंह को अगर आपने बंद नहीं किया बा के मखरज पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अब्बा। अब्बा, जी नहीं, हमको अब्बा नहीं पढ़ना है, हमको आवाज में फर्क देखिए। अब, अब, और नीचे वाला देखिए, अब्बा, अब्बा। एक तो तशदीद है इसलिए शिद्दत बहुत ज्यादा हम उस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऊपर जिस पर हमको कलकला करना है, बा पे अगर सुकून है, कलकला करना है, तो अब, अब क्या हुआ? आवाज टकराई और फौरन अलग हो गई। ये चीजों को आपको जो है वो ध्यान रखना है, इन चीजों को इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जब आवाज को टकराए बगैर आपने लिप्स बंद किया, बाकी मखरज को आप देखिए, होंठों का मखरज है वो हम पीछे पड़ चुके हैं उसकी सिबात वगैरह में। तो बा में जब हम लिप्स को बंद नहीं करेंगे, लिप्स को खुला रखेंगे, आवाज बाहर की तरफ छोड़ देंगे, तो वो तशदीद हो जाएगा। ऐसा मत करें। तो यहाँ पर आप अलकला की सिफत को बहुत ध्यान से जो है वो सुनिए। ठीक है, अब, अब मैं देखिए इस पर साकिन को साकिन ही रख रही हूँ, मैं जबर नहीं लगा रही हूँ। अब्बा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। अब, अब क्या करना है, आपको मखरज पे लिप्स को बंद करना है, देन दूसरे स्टेप पे फिर आपको जैसे आवाज टकरा के वापस अलग हो गई, जैसे मैंने दो गाड़ियों को आपको दो गाड़ियों की मिसाल दी है। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल से इंशाल्लाह उसको हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा देखिए, दूसरा हमारा जो ये है वो अफ, अफ। अच्छा पहला मैंने नहीं पढ़ा ना, ओके। इक़रा, इक़, इक़रा, अطعम, अط, أطعم، أبدا، أب، सॉरी، أبدا، أبدا، أجرا، अज, अज। आप इसको अजरन नहीं पढ़ने का, फिर क्या होगा, आपने जीम को कलकला की सिफत दे दी। अजरन, एक मिनट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को कैसे पढ़ना है इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। इक़रा, अطعम, أبدا، أجر، قدحا، قد، قद, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो आवाज में एक तरीके की बाउंसिंग होनी चाहिए, टकराव होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि हमने पहले जो एग्जाम्पल्स देखे ना, उसमें हुरूफ कलकला कहाँ आए थे? बीच में। अब वहां पर हमने इतना स्ट्रॉन्ग कलकला नहीं किया था, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर कलकला हुरूफ जो है वो लास्ट में आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि यहाँ पर सुकून असली की आपको एग्जाम्पल्स मिल गई। क्यों? क्योंकि कुरान में ये अल्फाज ऐसे ही लिखे हुए आएंगे। और अब यहाँ पर देखें आप कि दूसरे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये रुकने की सूरत में, अगर आयत में कहीं पर आपको इन हर्फ पर रुकना है, ठीक है, इन अल्फाज पर रुकना है, या फिर आप उसको जो है वो आयत के आखिर में आया है वहां आप रुक रहे हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी नो कि अगर जबर है या फिर दो जेर है या दो पेश है या कुछ भी है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, करते हैं उसको हम, जबर जेर पेश होगा, दो पेश दो जेर होगा, तो हम उसको साकिन कर देते हैं। फिर देखिए आप जब इसको साकिन कर रहे हो तो काफ साकिन आ गया, यहाँ पर त्वा साकिन आ गया, यहाँ पे बा साकिन आ गया, तो कौन सी सिफत देंगे हम यहाँ पर रुकने की सूरत में? जी हाँ, वेरी गुड, कलकला की सिफत देंगे, कलकला नहीं, कलकला, कलकला। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं, बात वाज़ेह हो जाएगी। खलक, मुहीत, लहब, अखरज, मसद। देख रहे हैं आप,
पहले की बनिस्बत इसमें हम थोड़ा ज्यादा वाज़ी करके कलकला दे रहे हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर लफ्ज के आखिर में कलकला आता है तो उसको बहुत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कलकला दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखें, यहाँ पर याद रखने की बात जो है कि अगर इन हरूफ पर फिर एक सवाल उठता है कि अच्छा, जबर जेर पेश होगा या कोई और हरकत होगी तो भी हम कलकला करेंगे? जी नहीं। अगर जबर जेर पेश ऐसी कोई हरकत आती है तो आप कलकला नहीं करोगे। ठीक है। तो फिर किस सूरत में हमें इसको कलकला करना है? सिर्फ और सिर्फ अगर इसके ऊपर आपको जो है वो साकिन मिलता है तो ही आप इस पर कलकला करोगे, अदरवाइज नहीं। और एक चीज याद रखें कि जबर जेर पेश से इसके जो है समझिए कि मखरज भी पता नहीं चलते हैं। लेकिन आप इसको अगर साकिन के साथ इसका मखरज पता करते हो, फॉर एग्जाम्पल अक इक उक अफ अफ इफ उफ अब इब उब बा अज इज उज्जी अद इद उद दाल। तो जहां पर वो आवाज लास्ट वाली रुक रही है ना, जैसे मैं बोल रही अद इद उद, अब आप देखिए कि आपके मुंह, आपके होंठ या आपकी जबान की पोजीशन क्या है, वही उसका मखरज होता है, वहीं से वो आवाज निकलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर इंशाल्लाह एक एक जो है वो हम कलकला के एग्जाम्पल्स भी देखते चलते हैं। काफ के एग्जाम्पल्स आप देखें। इक़्तरब खलक अफततमऊन बिलकिस्त बिलकिस्त। बाकी एग्जाम्पल देखें। इब्तिगाअ वक़ब। जीम की देखें। इज्तुशत अलबुरूज। इस तरीके से। ठीक है। आप देख रहे हो कि जीम पर जो है वो जेर है, लेकिन मैं रुक रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसको कलकला किया। दाल को देखें। वदउ अलमऊदी, और रुक रहे हो तो अलमऊद। इस तरीके से। ठीक है। आप कुछ कुरान के आयतों की एग्जांपल्स देखें, आपको किस तरीके से आपको इसको जो है वो लेना है। देखिए यहाँ पर। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन व मशहूद قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود। ठीक है। अब यहाँ पर एक सूरा मैंने लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर सूरा है, सूरतुल फलक। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब इस सूरह की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, एट दैट टाइम मैंने आपसे कहा था कि देखिए आखिर आखिर में हुरूफ कलकला है, आपको कलकला करना है। उस वक्त जिन लोगों को शायद नहीं पता था, इतनी बात वाजे नहीं हो पाई होगी, तो इंशाल्लाह आज हम इसको फिर देखते हैं और आपको बहुत अच्छे से बात वाजे हो जाएगी इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पर आयत के आखिर आखिर में कयाफ है, दाल है, बा है, और ये हरूफ कलकला के हरूफ है। तो इसीलिए देखिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस तरीके से कलकला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد। तो अब आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा।
کہ کس طریقے سے اگر آیت کے آخر میں یا ہم کسی ورڈ پہ رک رہے ہیں تو قلقلہ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔